محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ مخفی انداز میں اپنی ضرورتیں پوری کرو، کیونکہ ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ تلنگانہ کے کرنل سنتوش بابو کی آخری رسومات، سیاسی لیڈرز و عوام کی شرکت۔ بالآخر انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا ہوا اعلان، پوری ریاست میں ضلع کا 11واں مقام، 56% نتائج۔ ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے بالکنڈہ کے کناروں کے تعمیری کاموں کا معائنہ کیا، کسانوں کی فلاح سے ہی عوام کی فلاح ممکن۔ جائیداد ٹیکس ادا کرنے کی آخری تاریخ 30 جون، 1 جولائی سے 2% جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نظام آباد میونسپل کارپوریشن مسٹر روی بابو کا بیان۔ سلطان ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ٹی وی رپورٹر کے خلاف پولیس میں شکایتوں کا سلسلہ آج بھی جاری۔ ایم ایل سی انتخابات کی انعقاد کے لیے تیاری کا آغاز، کورونا وبا کے مد نظر بڑھائی گئی پولنگ اسٹیشن کی تعداد، نظام آباد ایڈیشنل کلکٹر کا کل جماعتی اجلاس۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ قومی سلامتی کے مسئلے پر کوئی سمجھوتہ نہیں، چیف منسٹر وزیر اعظم کے ساتھ شہیدوں کو خراج عقیدت کے لیے 2 منٹ کی خاموشی، چین کے ساتھ تنازع میں تلنگانہ عوام مرکز کے ساتھ۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے واضح کر دیا کہ ریاستی حکومت اور تلنگانہ عوام چین کے ساتھ موجودہ بحران کے موقع پر مرکزی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سلامتی کے مسئلے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جانا چاہیے، سارے ملک کو ایک ہو کر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ چیف منسٹر نے ہندوستان اور چینی افواج کے درمیان سرحد پر جھڑپ کے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم سے ویڈیو کانفرنس کے دوران چیف منسٹر نے کہا کہ چاہے چین ہو یا کوئی اور ملک، اگر وہ ہندوستان کی سالمیت میں کوئی مداخلت کرے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جانا چاہیے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ سیکیورٹی کے مسائل پر کسی کو سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وقت ہر شخص کو متحد ہو کر ایک آواز میں بات کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی ویڈیو کانفرنس کے آغاز پر نریندر مودی اور دیگر چیف منسٹرز نے شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی نے شہید کرنل سنتوش بابو کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسہ۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی نے کہا کہ ہندوستان کی سرحد پر گھس کر چینی فوج نے ہمارے ہندوستان کے آرمی آفیسر کرنل سنتوش بابو اور دیگر فوجیوں کو شہید کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرمی آفیسر سنتوش بابو نے اقوام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور ان کی قربانی کو کسی لحاظ سے فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی قربانی کو ہندوستانی عوام تاحیات یاد رکھے گی اور ان تمام بہادر فوجیوں کی خدمات کی ستائش کی۔ انہوں نے آرمی آفیسر کرنل سنتوش بابو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے ارکان خاندان کو پرسہ دیا۔ بودھن میں کورونا سے ایک شخص کی موت، تفصیل کچھ اس طرح۔ بودھن میں کورونا وائرس سے متاثر ایک شخص کی گاندھی ہاسپٹل میں کل موت واقع ہو گئی، جبکہ اس کی بیوی اور لڑکی کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر نظام آباد ڈاکٹر ورپا نے بودھن کے محلہ ٹی ٹی کوٹ وارڈ نمبر 34 کے متوطن CH راجندر پرساد پوسٹ مین کی گاندھی ہاسپٹل حیدرآباد میں کورونا سے موت ہو جانے کی توثیق کرتے ہوئے اخباری نمائندوں کو بتایا ہے کہ متوفی کی بیوی لاونیا لڑکی ارشدہ کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے، جبکہ رکن اسمبلی نظام آباد رورل باجریڈی گووردھن سے ملاقات کرنے والے کوٹگر منڈل کے 2 افراد شیخ محمد وحید کو
होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। मुतवफ़ी शख्स CH राजेंद्र प्रसाद जो हैदराबाद के एक पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन की मुलाजमत किया करते थे, 3 जून को अपने अफराद खानदान से मुलाकात के लिए बोधन आए थे। अचानक तबीयत बिगड़ जाने पर यहाँ बोधन के एक खानगी दवाखाने में इलाज किया जा रहा था। 12 जून तक अफाका न होने पर खानगी दवाखाने के डॉक्टर ने इन्हें कोरोना टेस्ट करवाने गांधी हॉस्पिटल से रुजू किया था। 13 जून को मज़कूरा शख्स का कोरोना टेस्ट मुस्बित आने के बाद महकमे सेहत आमे RDO बोधन म्यूनिसिपल कमिश्नर ने फौरन हरकत में आते हुए मज़कूरा खानगी दवाखाने को 14 दिनों तक बंद कर दिया है। शहर निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने कोविड-19 को मद्देनजर मुनक़िद होने वाले MLC इंतखाबात के तहत 50 पोलिंग स्टेशन के इजाफे का किया ऐलान। शहर निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने हाल ही मुनक़्क़िद होने वाले MLC इंतखाबात की तैयारी के लिए मौजूदा 6 पोलिंग स्टेशन को 50 तक बढ़ाने का ख्याल जाहिर करते हुए 17 जून को कलेक्ट्रेट में मौजूदा चैम्बर में पॉलिटिकल पार्टी के कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कोविड के मद्देनजर वोटर्स की समाजी फासले पर अमल करने के लिए पोलिंग के मुकामात को डिवीजन सतह और मंडल सतह पर भी पोलिंग के मुकामात को कायम करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मंजूरी अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि MLC इंतखाबात में होने वाली तब्दीली को मद्देनजर रखकर आज पॉलिटिकल पार्टी के कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद करके MLC इंतखाबात की तब्दीली के बारे में स्टेक होल्डर्स को वाकिफ करवाया गया। इस इजलास में निजामाबाद, बांसवाड़ा, कामरेड्डी, इलारेड्डी रेवेन्यू डिवीजन ओहदेदारान, TRS के E गंगा रेड्डी, TDP के D रवि, BJP के विनोद कुमार, BSP के R मल्लेश व दीगर ने शिरकत की। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से जहीराबाद कांग्रेस हल्के जुम्मेदार के मदन मोहन राव की खिदमत की सताइश करते हुए दी गई तहनीत। अहले खैर हजरात, बुरे वक्त में अवाम की खिदमत के लिए आगे आने की अपील। की मदन मोहन राव कांग्रेस हल्के जुम्मेदार कॉन्टेस्ट MP इनकी जानिब से कोरोना वबा से अवाम को बचाने के लिए इनके हल्के में गुज़िश्ता 48 दिन से हर गांव में जरासीम का शद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। इनकी इस खिदमत की सताइश करते हुए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया रियासती सदर सैयद मोहसिन अहमद की जानिब से इनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए इनकी खिदमत की सताइश करते हुए ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की जानिब से एक तौसीफनामा हवाले किया, जिस पर के मदन मोहन राव ने भी खुशी का इजहार करते हुए अवाम से अपील की कि वो अवामी खिदमत के लिए आगे आए। आज हमारा ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया, आज इसे सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारा स्टेट बॉडी तेलंगाना का अजीज खान और मोहसिन साहब, बहुत खुशी का बात है। हमें हमारा जहीराबाद पार्लियामेंट में पूरा सैनिटाइजेशन सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो कोरोना के लिए और सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, हर एक गली में, हर एक गांव में हम जा रहे हैं। मेरा मदन मोहन ट्रस्ट की तरफ से हमारा खुद का पैसा लगा के 78% ऑफ द पार्लियामेंट, इंटर पार्लियामेंट 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में RTC निजामाबाद के अहम मुलाजिमीन होम क्वारंटाइन। RTC रेंजर मैनेजर सालिमन, डिविजनल मैनेजर अनिल कुमार, प्रिंसिपल ऑफिसर श्रीनिवास कुमार, डिपो के मैनेजर आनंद कुमार को होम क्वारंटाइन कर दिया गया। वाज़ेह है कि ये तमाम ओहदेदार रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात की थी। RTC किरायों के मसले पर यूनियन के कायदीन ने रुकन असम्बली गणेश गुप्ता से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की थी और गणेश गुप्ता ने ओहदेदारों को तलब करते हुए इनके किरायों के मसले पर बातचीत की थी। रुकन असम्बली को कोरोना पॉजिटिव जाहिर होने पर इन ओहदेदारों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया। इनके अलावा यूनियन के कायदीन को भी होम क्वारंटाइन कर दिया गया। निजामाबाद जिले में कोरोना का कहर चल रहा है और हर रोज किसी न किसी देहात में कोरोना की मुस्बित केसेस जाहिर हो रहे हैं। खास तौर पर जिले के आर्म मंडल के मगड़ी में 5 अफराद को कोरोना जाहिर हुआ था और मोरताड़ में भी कोरोना जाहिर हुआ था, जिसकी वजह से इन देहातों में भी मुआयना करते हुए घर घर सर्वे किया गया था। जिले निजामाबाद में इब्तिदा से लेकर अब तक 87 केसेस जाहिर हुए हैं। मगड़ी में जिन 5 अफराद को कोरोना जाहिर हुआ था, इनमें से 4 को निजामाबाद सरकारी दवाखाने में भर्ती करवाया गया और 1 को हैदराबाद रवाना किया गया। रूरल मंडल से ताल्लुक रखने वाले अफराद को भी होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। मस्जिद लॉकडाउन नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वसत पर जोर। कोरोना वायरस तहदीदात में कटौती के बाद माशी कारकर्दगी में बेहतरी के आसार। PM मोदी की चीफ मिनिस्टरों के साथ मीटिंग।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ऐसी अफवाहों को खत्म करने की जरूरत है कि लॉकडाउन दोबारा लागू किया जा सकता है। इन्होंने चारशंबे को चीफ मिनिस्टरों के साथ ई मीटिंग में कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान आयत करदा तहरीदात में कटौती के बाद से माशी कारकर्दगी में सुधार के आसार जाहिर हो रहे। चुनांचा जारिया अनलॉक 1.0 के बाद अब 2.0 के ताल्लुक से गौर करने और इन्फेक्शन को घटाने के तरीके भी ढूंढने की जरूरत है। इन्होंने निशानदेही की कि कोविड-19 का चंद बड़ी रियासतों और बड़े शहरों में फैलाव ज्यादा है और चीफ मिनिस्टरों से अपील की कि अपनी अपनी रियासत की मौजूदा टेस्टिंग की सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल किया जाए। मीटिंग के दौरान चीफ मिनिस्टरों ने दस्तयाब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से बात की ताकि कोरोना चैलेंज से निपटा जा सके। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद मजबूत बनाने के इक़दामात पर भी बात की। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी इस दर्जों मीटिंग में हिस्सा लिया। इन्होंने कहा कि मुल्क अभी तक इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में काफी कामयाब रहा है, ताहम इन्होंने मुतफ़िक़ किया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इन्होंने तमाम चीफ मिनिस्टरों से दरख्वास्त की कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की हौसला अफजाई की जाए, जो हिफाजती इक़दाम के तौर पर कारगर साबित हो सकता है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की हिदायत के मुताबिक किसानों को काश्त के लिए आबी ज़खायर फराहम करने के लिए ज़ेर तामीर किनाल का पानी का अखराज का मुशाहिदा व जायजा लेते हुए अहदेदारान व कॉन्ट्रैक्टर को दी हिदायत। रियासती वज़ीर इमारत व शौरा विमला प्रशांत रेड्डी रियासती वज़ीर इमारत व शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना के वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक हर किसान को 1 एकड़ के तहत फसलों की काश्त करने के लिए आबी ज़खायर फराहम करते हुए एक अजीम कारनामा अंजाम देने में सीएम केसीआर साहब का अमल दखल शामिल। इन्होंने बरोज़ जुमेरात मोरताल कमरपल्ली मंडल के नागापुर, तिमापुर, धर्मपुरा, मौजा के केनाल पर ज़ेर तामीर कामों का मुशाहिदा करते हुए केनाल के पानी के अखराज के तरीके का अहदेदारान से वाकिफियत हासिल की गई। इन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत मौजे के तमाम केनालों को आबी ज़खायर फराहम करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारान और कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी गई और इसके साथ SRSP स्कीम के तहत किसानों को आबी ज़खायर पहुंचाने के साथ केनालों में आबी ज़खायर को मजीद बढ़ाने के काम सिर्फ सीएम केसीआर के इख्तियार में ही काम पाए तकमील को पहुंचा है और इन्होंने किसानों की तरक्की के लिए केनाल में मौजूद आबी ज़खायर का पानी सही इखराज अमल में लाने का ज़ेरे तामीर कामों का मुशाहिदा व जायजा लिया गया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से जिले में बड़ा केनाल के करीब चेक डैम की तामीर अमल में लाकर तेलंगाना में आबी ज़खायर को महफूज कर किसानों की फसलों की काश्त को पानी सैराब किया जा रहा है। अली सागर से शहर को आने वाली पाइपलाइन की खराबी की वजह से गुज़िश्ता 2 दिन से मीठे पानी की सरबराही मुस्तैद, लेकिन अवाम में कई अफवाहें गश्त। इंशाल्लाह कल से हस्बे मामूल पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। गुज़िश्ता 2 दिन से शहर के कई इलाकों में पीने के पानी की सरबराही बंद थी, जिसके ताल्लुक से अवाम में कई गलत फहमियां भी फैल रही थी। जिसके ताल्लुक से रोशन टीवी की जानिब से तहकीक की गई तो पता चला कि अली सागर, जहां से निजामाबाद के कई इलाकों को पीने के पानी की सरबराही होती है, वहां पर पाइपलाइन खराब होने की वजह से गुज़िश्ता 2 दिनों से पानी की सरबराही बंद थी और वो अब अच्छी हो चुकी है। इंशाल्लाह कल से हस्बे मामूल पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। बीटेक और डिग्री इम्तहानात के इल्तिवा पर हाई कोर्ट में समाअत, इम्तिहान के बगैर प्रमोट करने की दरख्वास्त, JNTU को हुकूमत के अहकामात का इंतजार। रियासत में बीटेक और डिग्री सेमेस्टर इम्तहानात के इनेकाद के बगैर तलबा को प्रमोट करने की दरख्वास्त करते हुए कांग्रेस के तलबा तंजीम NSUI ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। NSUI के सदर वेंकट की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त की आज समाअत हुई। JNTU की जानिब से जवाबी हल्फनामा दायर किया गया है। JNTU ने अपने हल्फनामे में कहा कि हुकूमत के अहकामात मिलने तक वो इम्तहानात के इनेकाद के लिए पाबंद है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में इम्तहानात का इनेकाद मुमकिन नहीं है, लिहाजा SSC तलबा की तरह बीटेक और डिग्री तलबा को भी प्रमोट किया जाए। वकील ने कहा कि ताख़ीर की सूरत में तलबा की उलझन में इजाफा होगा। अदालत ने इब्तिदाई समाअत के बाद मुकदमे को 20 जून तक मुलतवी कर दिया है। वायरस से मुकाबले के लिए क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा ज़रूरी, खौफज़दा न होने अवाम को डॉक्टर्स और माहिरीन का मशवरा।
جاریہ مانسون کے دوران وبائی امراض اور کورونا وائرس سے مقابلہ کرنے کے لیے قوت مدافعت کو بڑھانا ضروری ہے۔ ڈاکٹرز اور دیگر ماہرین نے مشورہ دیا کہ نوجوان اور بوڑھے افراد روزانہ 90 mg تک وٹامن سی کا استعمال کریں۔ ایسے میوے اور ترکاریاں جن میں وٹامن سی زیادہ ہے وہ کھائیں۔ علاوہ ازیں دودھ اور ہلدی کا روزانہ بلا ناغہ استعمال کیا جائے۔ ادرک کی چائے، شہد کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کم از کم 2.5 لیٹر پانی کا زیادہ سے زیادہ 4 لیٹر پانی پینا چاہیے۔ ہلکی کسرت، خشک میوے اور صاف صفائی کے ذریعے نہ صرف صحت بہتر رہے گی بلکہ اگر خدا نخواستہ کورونا وائرس یا دوسرے امراض میں مبتلا ہو جائے تو اس کا مقابلہ بھی کیا جا سکے گا۔ وٹامن سی اور وٹامن ڈی کی کمی سے قوت مدافعت پر اثر پڑتا ہے، اسی لیے ڈاکٹرز کا مشورہ ہے کہ صبح جب دھوپ نکلتی ہے تو 20 منٹ دھوپ میں گزارے۔ یہ بھی صحت اور قوت مدافعت کے لیے بہتر عمل ہے۔ رات میں دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا صحت کے لیے مضر ہے، بالخصوص ان دونوں میں تھکن وغیرہ سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ جسم اگر کمزور ہو جائے تو بیماریوں کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹرز اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر مضبوط اگر نہ ہو تو بیماری زیادہ اثر دکھاتی ہے۔ ہر بیماری کا پہلا علاج ذہنی اور نفسیاتی مضبوطی ہے۔ وہ لوگ جو بیماری سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں ان کے بچنے کے امکانات کافی کم ہوتے ہیں، کیونکہ بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن بڑھنے کی وجہ سے اعضائے رئیسہ کو زیادہ آکسیجن کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔ کووڈ سے متاثرہ مریضوں کے پھیپھڑے خراب ہونے کی وجہ سے آکسیجن دوسرے اعضاء تک نہیں پہنچ پاتی، دوران خون میں خلل پڑ جاتا ہے جس سے جان کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں نظام آباد کو 11واں مقام حاصل، 19,578 کے منجملہ 10,953 طلباء نے کامیابی حاصل کی، 56% نتائج۔ RIO نظام آباد انٹرمیڈیٹ وڈینہ نے بتایا کہ ریاست گیر سطح پر نظام آباد کو انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں 11واں مقام حاصل ہوا ہے۔ ضلع نظام آباد سے جملہ 19,578 طلباء و طالبات نے امتحانات تحریر کیا۔ ان میں سے 10,953 طلباء و طالبات کامیابی حاصل کی اور 56% نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 9,508 طلباء نے امتحان تحریر کیا، ان میں سے 4,317 طلباء نے کامیابی حاصل کی اور ان کا 45% نتائج رہے۔ اسی طرح طلبات 10,075 امتحان تحریر کیے تھے، ان میں سے 6,636 طلباء نے کامیابی حاصل کی اور ان کے 66% نتائج رہے۔ لڑکوں پر لڑکیوں نے ہمیشہ کی طرح سبقت حاصل کی۔ سال اول کے جملہ 19,337 طلباء و طالبات نے امتحانات تحریر کیا تھا، ان میں سے 9,430 طلباء و طالبات نے کامیابی حاصل کی اور 49% نتائج رہے اور ریاست گیر سطح پر انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں 15واں مقام حاصل رہا۔ ان میں 9,398 طلباء امتحان تحریر کیے، ان میں سے 3,594 طلباء نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے 38% نتائج رہے۔ اسی طرح 9,949 طلباء نے امتحان تحریر کیا، 5,836 طلباء نے کامیابی حاصل کی اور ان کا 59% نتائج رہے۔ لڑکوں پر لڑکیوں نے ہمیشہ کی طرح سبقت حاصل کی۔ شہر نظام آباد بی جے پی کے کارکرد عہدیدار نے کہا کہ فوجی جوانوں کی شہادت ضائع نہیں جائے گی۔ ہندوستان امن کا خواہ اور استقلال انگیزی پر منہ توڑ جواب دینے کا اہل اور جنگ میں شہید کرنل سنتوش بابو اور دیگر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کی گئی۔ عوام کو چائنا کی چیزوں کے بائیکاٹ کی اپیل کی گئی۔ شہر نظام آباد کی بی جے پی کے کارکرد عہدیدار دھن پال سوریہ نارائن نے کہا کہ ہندوستان چین کے درمیان جاری سرحد پر تناؤ کے درمیان گلامن وادی میں بات چیت کے دوران چین کے فوجیوں کی جانب سے پہلے خونی تصادم کے جھڑپ میں ہندوستانی فوج کا ایک افسر سمیت 20 نوجوان شہید ہو گئے۔ انہوں نے شہید ہونے والے بھارت کے سپرد کرنل سنتوش بابو اور شہید ہونے والے ہندوستانی فوجیوں کو بی جے پی کے ضلع پارٹی کے دفتر میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے خاطر اپنی جان کی قربانی کرنے والے کرنل سنتوش بابو کی قربانی کو ہندوستانی عوام بھول نہیں پائے گی اور ان کے افراد خاندان کو پرسا دیا۔ اس کے بعد شہر نظام آباد بی جے پی کے صدر ایٹلا سدھاکر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی خاطر اپنی جان نچھاور کرنے والے فوجیوں کی قربانی ضائع نہیں جانے کا انکشاف کرتے ہوئے
हमारी हुकूमत सही वक्त सही मौके पर इसका मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। इन्होंने कहा कि हमारी अवाम चाइना के चीज़ों का बाइकाट करते हुए चाइना के ऐप पर भी इम्तना आयद करने का ख्याल जाहिर किया। इस मौके पर सीनियर कायद कॉर्पोरेटर मलेश यादव ने कहा कि हिंदुस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले फौजियों को हिंदुस्तानी अवाम ताहयात याद रखने का ख्याल जाहिर किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी पार्टी के कायदीन भरत भूष, गंगोली गंगाधर, नारायण यादव, स्वामी यादव, पुलिस सेना व कारकुनान ने शिरकत की। 20 మంది సైనికులు మరియు మన తెలంగాణ వాసి సంతోష్ బాబు ఆత్మకు శాంతి కలగాలని, వారి కుటుంబానికి భగవంతుడు మనోధైర్యాన్ని కలిగించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ అర్బన్ నగర శాఖ తరఫు నుండి వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతూ, ఏదైతే దొంగచాటుగా సరిహద్దుల్లో దొంగచాటు దెబ్బతీసిన చైనా, ఈరోజు మనమందరం కూడా చైనాకు బుద్ధి చెప్పే సమయం వచ్చింది। शहीदों के जसद खाकी को फौजी एजाज के साथ कर्नल संतोष बाबू दीगर शहीद फौजियों को खिराज पेश करते हुए आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। हिंदुस्तान चीन के दरमियान जारी सरहद पर तनाव के दरमियान उलावन वादी में दुश्मन फौजियों से मुकाबला करते हुए अपनी जान न्यौछावर करते हुए शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू और दीगर शहीद फौजियों की नाश को फौजी ओहदेदारान ने शहीदों की जसद खाकी को फौजी एजाज के साथ आखिरी रस्मात अंजाम देते हुए खिराज पेश किया। शहीद कर्नल संतोष बाबू के फर्जिंद अनिरुद्ध की उम्र कम होने की वजह से कर्नल संतोष बाबू के वालिद साहब की जानिब से आखिरी रस्मात अंजाम दी गई। फौजी ओहदेदारान की जानिब से हवा में 3 राउंड फायरिंग करते हुए खिराज अक़ीदत पेश की गई और दीगर सियासी कायदीन ने शहीद फौजियों का दीदार किया। सीएम KCR के मुताबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने करीब रहकर शहीद कर्नल संतोष बाबू की आखिरी रस्मात की अंजाम दही मुकम्मल करवाई। कोविड-19 के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए एहतियाती इक़दामात पर अमल करते हुए आखिरी रस्मात को अंजाम दिया गया और इनकी आखिरी रस्मात में इनके अफराद ख़ानदान और फौजी ओहदेदारान को शिरकत की इजाज़त दी गई। मालिकीन जायदाद 30 जून से कबल बल्दी टैक्स अदा करें। 1 जुलाई से 2% जुर्माना आयद होगा। निज़ामाबाद डिप्टी कमिश्नर बल्दी रवि बाबू। डिप्टी कमिश्नर बल्दी निज़ामाबाद मिस्टर रवि बाबू ने जायदाद टैक्स दहिंदगान से साल 2020-21 जायदाद टैक्स 30 जून से कबल अदा करने की अपील करते हुए कहा कि 1 जुलाई से जायदाद टैक्स की अदम अदायगी पर हर माह 2% जुर्माना आयद किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर बल्दी मिस्टर रवि बाबू आज अपने चैम्बर में मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। कहा कि कोविड-19 कोरोना वबा की वजह से मालिकीन जायदाद को बर वक्त डिमांड नोटिस टैक्स अदा करने के लिए जारी नहीं किया जा सका। 30 जून तक जायदाद टैक्स साल 2020-21 बगैर जुर्माने के वसूल किया जाएगा, जिसका आगाज आज से किया जा रहा है। इन्होंने जायदाद बल्दी टैक्स ऑनलाइन दफ्तर बल्दी में या बल्दी बिल कलेक्टर को अदा करके रसीद हासिल कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर बल्दी रवि बाबू ने बताया कि निज़ामाबाद बल्दी ने 35 करोड़ रुपए जायदाद टैक्स की वसूली का निशाना मुकर्रर किया है। हुकूमत ने एडवांस जायदाद बल्दी टैक्स साल 2020-21 की अदायगी पर 5% टैक्स में रियायत देने का ऐलान किया था, जिसके तहत निज़ामाबाद बल्दी को 5 करोड़ रुपये वसूल हुए हैं। बाकी 30 करोड़ रुपये जायदाद टैक्स की वसूली के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। इन्होंने वाज़ेह किया कि कोरोना वबा की वजह से हुकूमत ने टैक्स की अदायगी में कोई माफ़ी या रियायत नहीं की है। मालिकीन जायदाद को हर हाल में टैक्स अदा करना ही होगा। इस मौके पर बल्दी रेवेन्यू ऑफिसर नरेंद्र, रेवेन्यू इंस्पेक्टर एहतशाम अली खान, श्रीनिवास, रमेश, गणेश भी मौजूद थे। పురపాలక నగర పాలక సంస్థలోని సిటిజన్ సర్వీస్ సెంటర్లో కానీ సిటిజన్ బడ్డీ యాప్ ద్వారా కానీ ఆన్లైన్ ద్వారా కానీ లేకపోతే మన బిల్ కలెక్టర్ ద్వారా హ్యాండ్ హెల్డ్ మిషన్స్ ద్వారా కానీ చెల్లించవలసిందిగా కోరుచున్నాను। ఒకవేళ మన డిమాండ్ నోటీసులు బిల్ కలెక్టర్లు పంచడంలో ఏ విధంగా జాప్యం జరిగినా కానీ అన్నిదా భావించకుండా, ఎందుకంటే మనకి కోవిడ్ వల్ల ఈ ఇయర్ డిమాండ్ నోటీస్ జనరేషన్ లేట్ అయింది కాబట్టి వాళ్ళు డిమాండ్ నోటీసులు పంచినా ఒకవేళ లేటుగా పంచకపోయినా కానీ జూన్ 30వ తేదీలోగా అందరూ ఆస్తి పన్నుని నేను పైన తెలిపిన మార్గాల ద్వారా ఆస్తి పన్ను చెల్లించవలసిందిగా కోరుచున్నాను।
अमीश देवगन के खिलाफ मस्जिद जबल नागाराम कमेटी व कांग्रेस कायद मिनहाज की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज। मस्जिद जबल नागाराम की जानिब से आज फिफ्थ टाउन नागाराम में न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। वाज़ेह है कि अमीश देवगन ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने के बाद पूरे मुल्क में लाखों की तादाद में अवाम ने इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इस मौके पर कांग्रेस कायद मिनहाज व दीगर कमेटी मेंबरान भी मौजूद थे। उनके बारे में गुस्ताखी की है, वो जानवर के बारे में हम हुकूमत से ये तलब करते हैं कि उसके चैनल को बैन किया जाए और वो जालिम को गिरफ्तार किया जाए। उसने जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में गुस्ताखी की है। मोहम्मदिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले सहाफ़ी के खिलाफ महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज। टीवी एंकर अमीश देवगन की जानिब से सुल्तानाने हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने पर मोहम्मदिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शहर के वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई और अमीश देवगन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया और इस जैसे लोग मुल्क की एकजहती के लिए खतरा करार दिया। सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले न्यूज 18 अमीश देवगन पर सख्त कार्रवाई का तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन का मुतालबा। सुल्ताना ने हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में न्यूज 18 अमीश देवगन ने गुस्ताखी करने पर तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन की जानिब से बोधन एसीपी जयपाल रेड्डी को तहरीरी शक्ल में शिकायत दर्ज करवाई और इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर जिम्मेदारों ने कहा कि सुल्ताना ने हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के पास बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर अफराद अकीदत के साथ पहुंचकर जियारत करते हैं और इनकी करामत को हमेशा याद रखते हैं। इनकी शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि मुल्क कोरोना वबा सरहदों पर जंग के हालत से दो चार है। ऐसे हालात में जहां एक सहाफ़ी को एकजहती के लिए दावत देनी चाहिए थी, वहीं पर ऐसी हरकत से मुल्क को दो हिस्सों में बांटा है। शख्स है जिसने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कलिमात कहे हैं। हम हुकूमत तेलंगाना से और हुकूमत हिंदुस्तान से गुजारिश करते हैं कि उसके साथ सख्त से सख्त उसके साथ कार्रवाई की जाए। हम उसकी माफ़ी नहीं देखना चाहते, बल्कि उसके साथ वही सलूक किया जाए जो दूसरे लोगों के साथ किया जाता है। क्योंकि एक मर्तबा अगर किसी के साथ, चाहे वो कोई मज़ाहिब के क्यों ना हो, इस्लाम अमन का पैगाम है और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं मानते, बल्कि सारे दुनिया के लोग उनको मानते हैं और सारी दुनिया से वहाँ पर लोग आते हैं। कोई मज़हब, कोई मिल्लत या किसी का फ़र्क वहाँ पर ये नहीं करते। हर एक आकर उनके पास से जो अपनी हाज़िरी देकर उनके वहाँ से दामनों को अपने पूरे करके जाते हैं। लिहाजा हमारी गुजारिश। पिटला मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले शौहर व बीवी में रोजाना के घरेलू झगड़े की वजह से तंग आकर शौहर ने किया बीवी का कत्ल। पिटला मंडल जागदम्बा ग्राम पंचायत के इहाता गुड़ी टांडे की नैनावत शिरीषा 21 साल अपने शौहर से अलहदा होकर पिटला मंडल के श्रीकांत चारी उमर 22 साल 1 साल कबल ही शादी अंजाम दी गई। गुज़िश्ता कुछ दिनों से शौहर व बीवी के दरमियान घरेलू झगड़ा होने के बाद तंग आकर रात के औकात में दूसरे आदमी की मदद लेकर अपनी बीवी का गला दबाकर हलाक कर दिया, जिस पर लड़की के रिश्तेदारों की जानिब से शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। భార్యాభర్తలు మంచిగానే తిన్నారు, పడుకున్న తర్వాత మరి మధ్యరాత్రి వాళ్ళిద్దరి మధ్యన గొడవ జరిగింది. నువ్వెందుకు ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ తిరుగుతున్నావు అని చెప్పని భర్త, నేనేం తిరగడం లేదు అని అతను, ఇద్దరు ఒకరికొకరు కొట్లాడుకొని అదేవిధంగా తెల్లవారుజామున 3 గంటల ప్రాంతంలో ఆ శ్రీకాంత్ చారి ఆమె ఛాతిపై కూర్చొని గొంతు పిసికి చంపేసిండు। शहीद फौजियों को NSUI की जानिब से दी गई खिराज तहसील। हुकूमत फौजियों की शहादत का चीन से बदला लेने का मुतालबा।
हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत करते हुए शहीद होने वाले फौजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज NSUI की जानिब से शहर के इलाके गांधी चौक पर कैंडल मार्च किया गया। इस मौके पर NSUI सदर वेनु मोइन यूनुस प्रमोद व दीगर मौजूद थे। इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत फौजियों की हिफाजत के लिए और भी इक़दाम ले और इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ करवाते हुए चीन को इसका मुंह तोड़ जवाब दे। मोहम्मद शकील अहमद फाजिल को निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस फ्लोर लीडर मुकर्रर करने पर सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तमाम जमात के साथियों और अवाम से किया इजहार तशक्कुर। अस्सलाम वालेकुम। बहैसियत फ्लोर लीडर MIM निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाने पर मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, साथ ही साथ पाशा खादरी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, बलाला साहब का और हमारे भैंसे के चेयरमैन जनाब जाबिर अहमद साहब का, हमारे इदरीस खान साहब जो डिप्टी मेयर हैं शहर के, उनका और हमारे साथी तमाम ही कारपोरेटर्स और वही मजलिस के सोशल हमारे एक्टिव मेंबर्स तमाम का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे बहैसियत फ्लोर लीडर में बनने में मदद की। और साथ ही साथ मैं निज़ामाबाद की आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में हमारे 16 कारपोरेटरों को बड़ी अक्सरियत से जिताया और फिर से हमारे MIM पार्टी पर एतमाद ज़ाहिर किया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ निज़ामाबाद की आवाम का। मैं अब बहैसियत फ्लोर लीडर इंशाअल्लाह मैं अपनी भरपूर तवानाई के साथ अपने काम को अंजाम दूंगा। बल्दी मसाइल पर बल्दी ऐवानों में उसके मसाइल को उठाते हुए उनको हल करने की कोशिश करूंगा और आवाम से मेरी ये ख्वाहिश है कि वो अपने अपने डिवीज़नों में अपने अपने कारपोरेटरों से कोई भी काम से रुजू हो, अगर वो लोग आप उनसे रुजू हो, वरना अगर वो कारपोरेटर्स अपने तरफ से अगर कोई देरी करते कुछ करते हैं तो हमारा अपना एक ऑफिस अहमदपुरा कॉलोनी में है, वहाँ पर भी हमारा डेली लोग जिम्मेदार लोग। गल्फ मजदूरों को शोर बेदार संगम के नायब सदर वंशी ने NRI पॉलिसी अमल में लाने के लिए रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी आलूर इंदिराकरण रेड्डी को एक तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की गई। मोरतार मंडल मौजा सुनकेट में सीनियर वकील तेलंगाना तहरीक के कायद नारायण रेड्डी मुजस्समे के सामने गल्फ मजदूरों के तहत एक एहतजाजी धरना मुनाकिद किया गया। इसके बाद सिनकेट नारायण रेड्डी ने मुजस्समे का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मौजे के मुकामी लोग के साथ इजलास में बात करते हुए कहा कि रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और आलूर इंदिराकरण रेड्डी को NRI पॉलिसी का अमल में लाने के लिए कहते हुए इनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए दबाव डालते हुए गल्फ मजदूरों के साथ मिलकर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी और आलूर इंदिराकरण रेड्डी को एक तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की गई। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सिरखे पर। तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू की आखिरी रस्मात, सियासी लीडर्स व अवाम की शिरकत। बिलाखिर इंटरमीडिएट के नताज का हुआ ऐलान, पूरी रियासत में जिले का 11वां मुकाम, 56% नताज। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा के किनारों के तामीरी कामों का मुआयना किया, किसानों की फलाह से ही अवाम की फलाह मुमकिन। जायदाद टैक्स अदा करने की आखिरी तारीख 30 जून, 1 जुलाई से 2% जुर्माना आयद किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मिस्टर रवि बाबू का बयान। सुल्तान हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने वाले टीवी रिपोर्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायतों का सिलसिला आज भी जारी।
MLC इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारी का आगाज। कोरोना वबा के मद्देनजर बढ़ाई गई पोलिंग स्टेशन की तादाद। निजामाबाद एडिशनल कलेक्टर का कुल जमाती इजलास। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।